Okay, so we have started with Node.js, and pretty much we said that key. So till now, whatever we studied, that was regarding the client. So what does client do? So client sends a request. So any resource wanted, um, like by any of the clients. So who is the client? So client is basically a browser, and so any browser. So like browser can be any kind. Like the mobile devices can be a browser or the desktop. So these can be termed as a browser, or maybe a client to be more precise. So thing is, the work of a server is to receive a request. ठीक है? So server काम है request को receive करना, and that request should be sufficient. कि what is the good evening Nikhil. So what is the resource needed? So resource can be anything. It can be a HTML file, it can be a CSS file, JavaScript file, image, PDF, anything. So apart from HTML, you guys get that into your browser. Apart from those pages, for example, PDF and all those things, so you can download it. Everything is done by the server itself based on whatever the request is. So today what we are going to see is we'll create a request handler. Okay, what we did in the last session. So in the last session, हमने एक server create करा, and we try to ping that server. Ping that server means send a request to that server, and we send some text from it. So today we are going to extend our knowledge and try to serve a file. Okay. So, all right, let me share my screen. Just a second, guys. How many of you have started Node.js and created your servers? I started, sir. All right, that's good. So I would like all of you to have a hands on. Okay. So if not already, let me also share my screen. So we created a separate folder for backend. So let me open that also. So guys, what we'll be doing now is whatever we create, so we'll have a GitHub repository for that. Okay. So whatever backend projects we create, so we'll try to create a GitHub repo for that. Let me share it. So here's what we did in the last session. We said that HTTP is a module. So HTTP is basically a package. Package means so कुछ कोड अलग से लिखे हुए हैं, ठीक है, पहले से किसी डेवलपर ने लिखे हुए हैं कि ये रूल्स हैं इस तरह से सर्वर बनाने, ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ सर्वर ओवर हियर, और उसको लिसन कर रहे हैं किसी पोर्ट नंबर. So basically, so this was a type of request we were sending. Okay. So the first thing we studied is कि we need a request handler. So request handler will be a function. So basically एक function होगा जो कि request और response पे work करेगा. So request will be received, based on that request will send a response. Both request and response are simple JavaScript object. ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट्स है, सिंपल नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बट या सो रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट और रिस्पॉन्स सर्वर बना के भेजता है. Inside this response, either we can send an HTML tag or anything we want from here. Similarly, so this was one function, create server. So create server was a one function which is receiving the request handler. This was one important thing. Second was server is listening to a port. हमारा जो server है, it listens to a port. Not only the server, एक example देता हूँ. So this is a meeting going on, ठीक है, ये हमारा meet चल रहा है Google Chrome पे, एंड दिस इज माई VS कोड, और मैं यहाँ पे गिट भी चला सकता हूँ, ठीक है, एंड आई कैन पुश एंड पुल कोड. बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू इंटरनेट. ओके, सो बिकॉज दोनों ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है या फिर ये नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, दोनों के दोनों नेटवर्क से कनेक्टेड है. सो वेन एवर रिस्पॉन्स कम्स, ठीक है, लेट्स से कि ये गिटहब सर्वर से बात कर रहा है और मैंने यहाँ पे भी गिटहब सर्वर खोल रखा है, मैंने यहाँ पे गिट खोल रखा है, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर टॉकिंग टू गिटहब सर्वर, ठीक है, दोनों ऑनलाइन कनेक्टेड है. सो वाई पोर्ट नंबर इज रिक्वायर्ड इज मेरा VS कोड और मेरा गूगल क्रोम दोनों डिफरेंट पोर्ट नंबर पे चलते हैं. पोर्ट नंबर एक लॉजिकल नंबर होता है, एक लॉजिकल पोर्ट होता है. फिजिकल पोर्ट तो हमें पता है, USB पोर्ट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वहाँ पे हम डेटा शेयर और रिसीव करते हैं. उसी तरीके से हमारे सारे सॉफ्टवेयर जो नेट से कनेक्टेड है, उन सबके पास अपना एक पोर्ट नंबर होता है, तो वहाँ से वो रिक्वेस्ट रिसीव और सेंड करते हैं. उसी तरीके से जो हमारा सर्वर बनेगा वो भी किसी पोर्ट पे लिसन कर रहा है. So this was the thing we said. Okay, so what we did from the last
द लास्ट सर्वर वी क्रिएटेड, सो हमने सबसे पहले तो सर्वर क्रिएट करा था, देन वी इंस्टॉल्ड अ पैकेज जो हमने बोला नोडमॉन. सो व्हाई वी इंस्टॉल्ड नोडमॉन पैकेज? एनीवन So रिमेंबर्स? we don't have to save the Mm-hmm. code every time. Mm-hmm. So we Okay. don't have to like restart the code every time we have to run it. Mm-hmm. To save that Okay. time, we use Node1. So if on every save, it auto restarts the server. हम्म. ठीक है, बिल्कुल सही. सो वेन एवर देर इज अ कोड चेंज हमें सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ता है. सर्वर रिस्टार्ट करते हैं. सो इफ आर सर्वर इज रनिंग, सो उसको मेमोरी में लोड होना पड़ेगा, तो एवरी टाइम वी हैव टू रीस्टार्ट इट. सो टू अवॉइड दिस वी इंस्टॉल्ड अ पैकेज नोडमॉन, जिसका काम है हमारे फाइल के चेंजेस को देखते रहना और सर्वर को खुद रीस्टार्ट करना. एक काम करते हैं, सबसे पहले सर्वर को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग द सर्वर. सो दिस इज माई सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट. I will try to save something. Okay, I will say ctrl s, so you can see that server successfully connected and restarting due to changes. So nodemon is helping us like creating the like sorry starting the server again, so we do not have to do it manually. One thing is, I just initialized git, so git initialize kiya maine, and I see 294 files here, but 294 files are not my changes. We do not include nodemon inside the github, so what should I do? I do not want to include it. I can say dot git ignore. Okay, so this is git ignore, and this file is basically having the folders and the names, okay, which we want to ignore or which we do not want to push to github. Okay, so when I say dot git ignore and I push this file, so I can see that this is grayed out. So इसके changes यहाँ पे नहीं आएंगे. ठीक है, so this is how it works. नोड मॉड्यूल्स हम इसलिए नहीं भेजते हैं बिकॉज दिस नोड मॉन इज ऑलरेडी अवेलेबल. ठीक है, तो जो भी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेगा, कैसे करेंगे वो देखते हैं. ठीक है, ओके. The point was how was our server working. So let's request to our server at port 8000. इस पर रिक्वेस्ट करके देखते हैं what do we get in response. ठीक है, so it's saying that received again and something which I have shared. So जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी भेजा. So okay, why am I not getting the complete one? Okay. Oh, okay. Anyways, so ये दोनों combine हो गए हैं, and this is the request. So this is the receive again being sent. So we created a module also last day. ठीक है, so हमने अपना खुद का भी मॉड्यूल बनाया था. मॉड्यूल बनाने और शेयर करने में क्या है? So basically जिसने भी जो भी नोड मॉड्यूल्स के पैकेजेस लिखते हैं, वो एक अलग फाइल है और उस कोड को हम अपने कोड में इंपोर्ट कर रहे होते हैं विद हेल्प ऑफ दिस रिक्वायर मेथड. सो हमने खुद का भी मॉड्यूल बनाया था. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी दिस मॉड्यूल एग्जाम्पल, तो वी क्रिएटेड टू फंक्शन ओवर हियर, एक्सपोर्ट्स डॉट एड और एक्सपोर्ट डॉट सब. सिंपल फंक्शन ही है, जस्ट एडिड एक्सपोर्ट, और हम इसको किसी और जावास्क्रिप्ट फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं एंड वी कैन यूज इट. सो यू कैन सी दैट एट लाइन नंबर 2 आई हैव सक्सेसफुली इंपोर्टेड इट और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. सो दिस इज हाउ मॉड्यूल सिस्टम वर्क्स. ठीक है, इसी तरीके से चीज़ों को हम रिक्वायर कर रहे होंगे. वाई वी विल रिक्वायर, सिंस बैक एंड इज गोइंग टू बी वेरी लाइक कंटेन्ड लार्ज फाइल्स मतलब कि ढेर सारी फाइल्स होने वाली हैं यहाँ पर, एंड वी नीड टू कनेक्ट दैम. सो हम या तो सारी चीज़ें एक ही फाइल में लिखें, विच इज़ नॉट अ गुड वे. सो विल ट्राई टू ब्रेक डाउन इन सेपरेट फोल्डर्स. ठीक है, तो हम अपने सर्वर को सेपरेट फोल्डर्स में बनाएंगे सो दैट इट इज़ ईजियर टू डीबग. इसीलिए हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हाउ डू वी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर फंक्शंस. ठीक है, सो दैट शुड बी Sir, गुड. if we want, अगर हमको सिर्फ एक ही फंक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो कैसे करें? ये तो फाइल पूरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, which has both the functions, access to both the functions. But इस फाइल से अगर कोई एक ही फंक्शन को कहीं पे इंपोर्ट करना हो तो? So if there is a single function, so you can say something like this. आप ऐसे कह सकते हो कि let's say that subtract function is used internally, तो you can say something like this. और फिर आपको export लिखने की ज़रूरत नहीं है. You can say const add, and let's say only um, add function has to be sent. So module dot export is equals to add. That's it. इसके तो ये सिर्फ add को ही करेगा, पूरी फाइल को नहीं करेगा. ठीक है. नाउ ओके सर. यू डोंट नीड दिस कंप्लीट वन. आप सिर्फ ऐड फंक्शन को कॉल कर सकते हो एंड यू कैन सी दिस इज ऐड फंक्शन.
सो हाउ टू रीच टू दैट मॉड्यूल, आप कैसे रीच करोगे? सो यू कैन जस्ट कंट्रोल क्लिक, जब आप कंट्रोल क्लिक करोगे तो फिर यू विल रीच दिस फंक्शन। ओके, एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो अभी हमने सिर्फ स्ट्रिंग रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करा था, तो स्ट्रिंग तो ठीक है, काफ़ी बेसिक हो गया। ठीक है, लेट्स ट्राई टू इम्पोर्ट अ कंप्लीट HTML फाइल, किसी HTML फाइल को ब्राउजर में भेज के देखते हैं। ठीक है, हाउ नॉर्मल सर्वर वर्क्स। सो आई विल से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड लेट्स से दिस इज HTML और इसमें एक हेडिंग है। ठीक है, सो लेट्स से दैट फर्स्ट HTML file. Now if you guys remember, डेटा ट्रांसफर के दो तरीके थे जो हमने पढ़ी थी। सो इन ओल्डर टाइम्स XML was used and in the newer times what is used? JSON. HTML. Yes. Okay. Yes. uh, JSON is used, right? EJS is a Jason. file. Jason, Okay, yes, sir. so JSON is basically EJS. Okay, we'll come to that EJS part. Okay, that is also one way, but the idea is internally किस form में जाता है. Okay, even though Jason it, format. yes, so even though it goes in JSON or XML, everything is at the end string in nature. ये तो हमें पता है ना कि स्ट्रिंग शेयर होता है सर्वर और क्लाइंट में। Yes, sir. ठीक है, बाद में उसको हम पार्स करते हैं, बट एवरीथिंग इज स्ट्रिंग, HTML स्ट्रिंग, JSON स्ट्रिंग, XML स्ट्रिंग, बिकॉज स्ट्रिंग आर हार्मलेस, राइट? Immutable. यस, Harmless. हार्मलेस मतलब कि वो हार्म नहीं करते। ठीक है, ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन सेंड अ फाइल। सो दिस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हैड सम मेथड, फॉर एग्जांपल राइट हेड। राइट हेड मीन्स राइटिंग हेडर। व्हाट डू आई मीन बाय राइटिंग हेडर? जब भी हम नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर नेटवर्क रिक्वेस्ट हमें रिसीव होती है, तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस भी जाती हैं उसके साथ। सो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट के साथ आती हैं और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स के साथ जाती हैं। सो हाउ डज इट वर्क? लेट्स सी नाउ। राइट, सो इमेज पे गिरा हुआ था, सो लेट्स पुट टू ऑल, और ऑल पे करेंगे तो हमें दिखेगा कि वी हैव अ डॉक्यूमेंट इन ओवर हेयर, जो कि हमने नहीं भेजा अभी तक। ठीक है, हेडर्स पे जाएंगे तो विल सी हेडर्स। ठीक है, रिस्पॉन्स हेडर्स एंड रिक्वेस्ट हेडर्स। अब ये समझ नहीं आ रही कि अभी तक तो रिस्पॉन्स हेडर हमने भेजा ही नहीं। ठीक है, फिर आया कहाँ से वो भी देखते हैं। And did we save the file? No, अभी तक फाइल नहीं सेव हुआ। But if we see a request header, so we can see that these are the things which browser accept. Browser कह रहा है कि मुझे HTML फाइल, XML फाइल, इमेज, ये सारी चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज वॉट एक्सेप्ट इज। कंटेंट टाइप इज वन ऑफ देम, सो आई गेस दैट इज नॉट ओवर हेयर। ठीक है, एनीवेज इट डजंट मैटर। सो कुकी है, कनेक्शन है, कैश कंट्रोल है एंड एक्सेप्ट इन कोडिंग। ठीक है, ओके। So there is something which we need to type in over here. So सबसे पहले तो status code type करेंगे। 200 is for Successfully run. yes, and the next one is write code. So write header, and the next is status message. Hmm. Okay. So inside this we send content type. Content type. Okay. Content type, and this is basically text slash HTML. We'll discuss what is this content type. Okay, and what is the next? So how can I send a file? So Node.js has ability to read, write, delete the file system. Okay, so ये सारे operations इसके पास पहले से हैं। ठीक है, तो we are in luck, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। So how to read a file? So there is a module FS। ठीक है, एक FS मॉड्यूल है। FS मतलब कि फाइल सिस्टम मॉड्यूल है हमारे पास ऑलरेडी, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। So see, some packages are already installed, pre-installed with Node.js, और कुछ आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी npm से। ठीक है, so these are already available. So this thing which we have, so read file is there. Okay, and inside the read file I need to supply the path. So how to supply the path? Should I send index.html? Okay, let's try this. So index.html because it is in the root, और इसके अलावा आई नीड टू सप्लाई द कॉल बैक। ठीक है, और जो कॉल बैक होता है उसमें पहली आर्गुमेंट है एरर, एंड द सेकंड इज द डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट, और सॉरी द बफर फॉर्मेट, जिसमें हम
ब्राउज़र को डेटा भेज सकते हैं. एंड हाउ डू वी डू इट? सो वी से दैट एंड वी नीड टू राइट इट इनसाइड. ठीक है, सो हमें यहाँ लिखनी है. सो लेट्स पेस्ट इट ओवर हियर. Okay, so this is what it is. Second one is response dot and basically I can share the data in over here. So I have the things in over here also. So it says that supply the data. So simply I can say data. Yes, this should work. Let me put a return over here. So basically what we are doing is हम fs.read फाइल के हेल्प से, fs एक मॉड्यूल है जिसका काम है फाइल को रीड करना. ठीक है, सो fs इज अ मॉड्यूल जिसका काम है फाइल को रीड करना, सप्लाइंग द पाथ. और ये कॉल बैक देता है. कॉल, सो आई गेस वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद कॉल बैक. सो जब मैं कॉल बैक बोलूँ तो आई होप वी आर नॉट, ऐसा कुछ नहीं है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. हर मतलब कि मोस्ट ऑफ दी मेन फंक्शंस में कॉल बैक था ही. सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉल बैक. तो फाइल अगर सक्सेसफुली रीड होती है तो डेटा मिलता है और डेटा इसको भेज देता है. लाइक इसको बफर में डेटा मिलता है. बफर इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ डेटा. लाइक जैसे डाउनलोड होती है तो डाउनलोड इज़ नॉट इंस्टेंटेनियस. ठीक है, वो बफर्स में आती है. ओके, एंड दैट इज देन इट इज़ कंबाइंड इन द सिस्टम. सो सेम चीज़ यहाँ पे भी है. ऑल राइट, लेट्स सी दिस. ओके, ऑल गुड. यस, सो देखते हैं व्हाट वी रिसीव. सो यू सी दैट दिस इज आवर फर्स्ट HTML फाइल. ठीक है, सो ये हमारी फर्स्ट HTML फाइल. अच्छा, सो एक चीज़ ये है कि एवरी फाइल डज नॉट गो टू, अच्छा मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी लास्ट सेशन में, एवरी फाइल डज नॉट गो टू द ब्राउज़र. जो फाइल हम सर्व करते हैं सिर्फ वही फाइल जाती हैं. ठीक है, आई कैन शेयर जावास्क्रिप्ट फाइल ऑल्सो. सो बैकएंड का मतलब ही यही होता है कि द फाइल्स विच आर ऑन द सर्वर, वो फाइल्स नहीं शेयर होती हैं. जो बैकएंड चाहता है सिर्फ वही फाइल शेयर होती है. लेकिन when we were studying फ्रंट एंड, जब हम फ्रंट एंड पढ़ रहे थे तो एवरी थिंग वॉज शेयर्ड. मतलब कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट सारी की सारी फाइलें जो थी वो ब्राउज़र में लोड हो रही थी. आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइस? तो ओके, सो दिस इज वन थिंग. नाउ हाउ कैन आई सेंड डिफरेंट फाइल्स बेस्ड ऑन डिफरेंट रिक्वेस्ट? तो ऐसा हो सकता है कि किसी साइट में होम पेज है, अबाउट पेज है. सो ये कैसे काम करती हैं, लेट्स सी दैट ऑल्सो. सो आई कैन से दैट इफ request dot url. So what is what does okay, what do I receive in request dot url? मुझे क्या रिसीव होती है? Out. Okay, so I receive the path after the port number, right? Yes, sir. Okay, just a quick console before we proceed forward. So what do we receive in this request URL? Okay, so I already have a console, so you can see that जब हम स्लैश पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो इट इज प्रिंटिंग स्लैश. एंड इफ आई गो टू होम, ठीक है, इफ आई से होम, द सेम थिंग अपीयर्स ओवर हेयर. बट अब यहाँ पे हमें स्लैश होम मिला. बट ऐसा तो होता नहीं है. लाइक इन डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स, सॉरी, इन डिफरेंट टाइप ऑफ URLs वी गेट डिफरेंट फाइल्स. तो वो कैसे होता है? सो रिक्वेस्ट डॉट URL, इफ आई से होम, सो आई लैंड हेयर. ठीक है, और आई कैन से दैट इफ request dot url, okay, request dot url is, let's say, uh, about. ठीक है, तो I may uh, land to some other page. Okay, something like this, maybe let's say about dot html या फिर कुछ और. So this is totally possible. So I will create a file about, okay, about dot html. Okay, and maybe I can copy the same content, or let's say about page. So about page और समथिंग करना है. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं. सी, HTML फाइल के चेंजेस पे सर्वर रिस्टार्ट नहीं होगा. ठीक है, कीप इन माइंड, HTML फाइल के चेंजेस पे सर्वर रिस्टार्ट नहीं होगा. सर्वर रिस्टार्ट होगा सिर्फ JS फाइल JS की फाइल पे. यस. ठीक है, सो इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग, सो आपको सर्वर को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड आई गेस HTML फाइल के लिए आपको स्टार्ट भी नहीं करना पड़ेगा. HTML फाइल को जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एवरी टाइम ये fs.read फाइल जो है ना,
वो हर बार उसको रीड करेगा, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है सर्वर स्टार्ट करने की, क्योंकि हर बार नया रीड होगा। सो हर बार आपका बफर अपडेट होगा। सो आई वी हैव क्रिएटेड टू यूआरएल्स, एक तो हो गया होम, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज अबाउट। ओके, सो अबाउट पे हैंग कर गया, इट मीन्स दैट समथिंग इज नॉट मैचिंग अप। ओके, what did go wrong? So if this is this, send this. If this is this, send this. Okay, let's see होम पे काम कर रहा है कि नहीं। आई कैन सी दैट सर्वर हैंग कर गया, ठीक है। सर्वर हैंग मीन्स कि इट इज़ नॉट गेटिंग द रिटर्न, ठीक है। सो जब इसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता रिटर्न में, so समथिंग लाइक दिस हैपेंस। ओके, so what's going wrong in here? सर वो इसमें हमने ब्रैकेट खोली नहीं है, बट ब्रैकेट वो बंद किया है इसलिए शायद। नहीं 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 खोलिए, नहीं 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 सर। यस, ठीक है, गॉट इट। स्लैश होम और स्लैश अबाउट, ठीक है, ठीक है। सो स्लैश होम और स्लैश अबाउट, सो अबाउट पे जाते तो ABOUT, ठीक है। सो ठीक है गाइस, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। सो डिफरेंट यूआरएल्स पे डिफरेंट लाइक डिफरेंट पेजेस को कैसे रेंडर करें। सो इफ़ इट हैपेंस कि ऐसे किसी पेज पे पहुंचा यूज़र जहाँ पे कुछ भी नहीं है, लाइक वो यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो यू कैन हैव समथिंग लाइक एंड सो अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो इट विल थ्रो एन एरर बिकॉज यू हैव नथिंग इन रिटर्न, बिकॉज दोनों के दोनों रिस्पॉन्स फाइल सिस्टम के अंदर है। तो अगर ये भी नहीं मैच किया, ये भी नहीं मैच किया, देन सो although you can send something like this, uh, how did you reach here, ऐसा कुछ लिख के भेज सकते हो, मतलब सर डराने के लिए नहीं, बट इट्स सो मे बी यू कैन से अबाउट टू पे है, सो यू कैन से समथिंग लाइक दिस। सो जितने भी डिफरेंट यूआरएल्स होंगे जो ये मैच नहीं करेंगे, ऑल विल रीच टू दिस पॉइंट। सो लेट्स से रॉन्ग समथिंग समथिंग, सो सारे के सारे यहाँ पे रीच करेंगे। So this is how we carry on the मतलब this is not how we do the thing, this is how this is the basic idea ki how we can serve different HTML files. Is it clear guys? फाइल सर्विंग क्लियर है कैसे करना है? ओके, एनी डाउट्स? नो, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस इज गुड वे टू डू दिस, बट वी ऑलरेडी हैव समथिंग वेयर वी डू नॉट नीड दिस मच कन्फिगरेशन, ठीक है। सो हमारे पास कुछ है ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर है, और यू कैन से देयर समथिंग विच विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ हैंडलिंग, मतलब कि डिफरेंट यूआरएल पे डिफरेंट फाइल्स को रीड करना, ठीक है। सो दीज थिंग्स कैन बी ईजिली डन। अच्छा, क्यों? फर्स्ट थिंग इज क्योंकि हमें ये लिखना पड़ा है, तो इट शुड बी स्मार्ट इनफ टू नो दैट कि ये HTML फाइल है। वाई शुड आई राइट दिस एवरी टाइम एंड वाई शुड आई डू दिस? दिस वन क्वेश्चन। सेकेंड इज वाई डू वी नीड टू डू द सेम ऑपरेशन अगेन एंड अगेन? fs डॉट रीड फाइल, अगर मैं किसी फाइल, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं फाइल सर्व कर रहा हूँ अपने HTML से, तो मुझे बार बार सेम चीज़ें क्यों लिखनी पड़ी? सो इज देर एनी बेटर वे टू डू दिस टू अवॉइड दीज duplicate code or something? So yes, there is something which we'll study. One more thing guys, जो भी फाइल्स बैकएंड से शेयर होती हैं सब आपको यहाँ से सप्लाई करना पड़ेगा। It means that if you try to do something like this, style.css, ठीक है, style.css, and let's say that h1, ठीक है, एक css फाइल बनाते हैं, and yes we can serve this file also, and I say that okay, so कुछ भी स्टाइल लिख देते हैं, like we do not need to think that much, so font weight और let's say 400, ठीक है, so something फैमिली like चेंज करते सर, क्या भाई? फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली में ये रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, ठीक है, यही रख देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन रख देते हैं, ठीक है। सो एंड इफ़ यू ट्राई टू डू दिस, अगर आप यहाँ पे इसको लिंक करना चाहोगे, सो सी दिस गाइस, नाउ आई ट्राई टू लिंक इट, ठीक है। सो
लिंक रिलेशन में style sheet, and the next is href is basically style.css, style.css. So this is, and that's it. So हो जाएगा, yes, it'll work. ठीक है. So if you do something like this, see this guys, and I try to roll on to the home page. ठीक है. Okay, so like saying for this one also, is it not matching the file? ठीक है. Let me check. So /home should be matching this, and it should call index.html, which is the first HTML file. So why is it not reading this one? What's wrong now? /home index.html, and it should have successfully sent this one. Okay, just a quick thing, guys. I guess this can be an issue. All right, let's see. So in the home, I am getting. What did I do? Like reach here. Let me comment this part out. Okay. Okay. Is there anything wrong? Oh, yes. So this is what I want to show, but ये लोड ही नहीं हुआ. So basically, style.css लोड नहीं होगा. Why is that? क्योंकि style.css, whatever file is here, you have to send it from the server itself. उसको आपको अलग से भेजना पड़ेगा. Then only it will work. So that is why our server was not working. So these are some problems जो हमारे खुद के सर्वर क्रिएट करने से आएगी. So we have a better solution, and that is where we are going to learn about a framework which is going to help us. What is that framework, guys? Yes, that's a good Express. question. Okay, so we are going to learn something about Express framework. Now there are two things. दो चीज़ें हैं, एक तो है लाइब्रेरी और दूसरा है फ्रेमवर्क. लाइब्रेरी जैसे कि jQuery, ठीक है. सो इट इज़ वेरी इट इज़ बिट बेसिक, ठीक है. कुछ फंक्शंस होते हैं, आप उन फंक्शंस को कॉल करते हो, यूज़ करते हो, दैट्स इट. इन केस ऑफ फ्रेमवर्क, यू हैव अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है. आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू चलना होता है, ठीक है. एंड यू हैव टू यूज सर्टेन फंक्शंस इसमें भी हैं जो आप टाइम टाइम पे इंपोर्ट करोगे, बट यू हैव टू कीप इन अ आर्किटेक्चर. तो आपको आर्किटेक्चरल फैशन में इसको इम्प्लीमेंट करना. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करो. अदरवाइज जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, विल कवर इन दैट सेशन नाउ. So it says that fast unopinionated minimalist web framework. So fast, ठीक है. Unopinionated मतलब कि we do not have any restriction. ऐसा कोई restriction नहीं है कि इसको ऐसे ही यूज़ करना है. So you can use like in multiple ways, ठीक है. अपने अपने setup हो सकते हैं, but a good setup will see that one. Minimalist means कि कम से कम कोड लिखना पड़ेगा. Okay, so this is what we are having. So installation is very easy, just like other packages. So ये भी एक पैकेज होगा हमारे पास. I will create a new, I will split my terminal, and I can say that npm install. मेक श्योर कि आप अपने सर्वर की डायरेक्टरी में हो, ठीक है. तो यू नीड टू बी इन द सेम डायरेक्टरी, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी. और फिर आप कहोगे यहाँ पे npm install express, and we see that express has been installed और ये भी अपडेट हो चुका है. So either you go with this one, or I will just comment this part. Okay. Now it's time we comment this part and use Express app. Okay. So I have just commented this, and it blue. HTTP is not needed. File system is not needed. Okay. This is also not needed. The only thing needed here is const express. Okay. And I will just require the package. जब भी किसी कोड को यूज करना होगा, you need to import it. So before importing, install it. Okay. So this is how I have imported Express.
ठीक है, कुछ नॉर्मल सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, देन लेट्स कंटिन्यू। सो आई विल से const सर्वर इक्वल्स टू, ठीक है, const सर्वर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, ठीक है। तो बेसिकली एक्सप्रेस एक फंक्शन होगा, ठीक है, उसको कॉल करेंगे तो इट विल थ्रो मी अ सर्वर, जो कि मुझे एक एक्सप्रेस का सर्वर देगा, थ्रो करेगा उसको कॉल करने पे, एंड आई कैन डू द लिसन थिंग, ठीक है, मैं इस पर लिसन कर सकता हूँ। सिंटेक्स में कोई चेंजेस नहीं है, सिमिलर सिंटेक्स है, ठीक है। एंड सर्वर डॉट, ओके, सर्वर डॉट गेट, ठीक है। सो ये रही गेट। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग हिंट गेट का क्या यूज होगा? व्हाट इज यूज ऑफ गेट? सर्वर, सर हम जितना भी गेट पे लिखेंगे सब हमारा ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा गेट पे। ओके, सो स्लैश गेट का मतलब होगा कि जितने भी गेट रिक्वेस्ट होंगे, गेट मेथड टाइप होंगे, सारे के सारे यहाँ पे आएंगे, राइट? ओके, नाउ यस सर। स्लैश होम, अगर मैं सिर्फ स्लैश लिख देता हूँ तो जितने गेट रिक्वेस्ट होंगे, और सिर्फ ही नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यू विल जस्ट रिमेंबर। सो सर्वर डॉट गेट, सर्वर डॉट पोस्ट, सर्वर डॉट पैच, ठीक है। ऐसे सबको याद नहीं कि ये गेट पोस्ट पैच ये सब क्या है? HTTP रिक्वेस्ट्स। यस, टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है, टाइप ऑफ मेथड्स हैं आप सारे के सारे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो एक्सप्रेस हैज़ मेड इट वेरी सिंपल। ये कह रहा है कि आपको गेट गेट रिक्वेस्ट लिखनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट लिखनी है, आप डायरेक्टली मेथड पे लिख दो। आपको आप उसी के अंदर फंक्शन लिखो, आपको इफ़ एल्स ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये सब जरूरत ही नहीं है करने की। यू कैन डायरेक्टली से दैट कि यहाँ पे डॉट गेट करा एंड यू कैन सिंपली से स्लैश, और यहाँ पे आप होम लिख दो, और फिर अपने फाइल को यहाँ से आप सर्व कर सकते हो, ठीक है। सो जस्ट अ क्विक वन, तो एक बार लिख लेते हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रेंडर भी है बट रेंडर विल सी लेटर, ठीक है। सो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड में बॉडी, सो शुड आई सेंड द कंप्लीट फाइल, और मे बी आई कैन say response dot end, just a quick one, so let's share a string first. So maybe express server created, okay, express server created, and okay, so let's see now. So get request करनी है, और ब्राउजर की वर ओके, एड्रेस बार कौन सी रिक्वेस्ट करती है? इट सेंड्स अ गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। सो सिंपली या तो आप फेच से करो या फिर आप ब्राउजर के एड्रेस से करो, सो इट विल वर्क दी सिमिलर। नाउ इट इज़ द सेम थिंग, बट आप अब आपको यहाँ पे क्रिएट सर्वर नहीं करना, ठीक है। यू कैन जस्ट डायरेक्टली से सर्वर डॉट गेट, और जो भी गेट रिक्वेस्ट होंगी स्लैश होम पे, इट विल बी रिसीव। हेज वन मोर थिंग, आप सेम यूआरएल को एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू सेंड अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू स्लैश होम, सो वो अलग तरीके से हैंडल होगा, ओके। सो नाउ गेट पोस्ट everything like is already there in express server. सो ये रहा हमारा सर्वर, जस्ट इन 2-3 लाइन्स, ठीक है। सो बस 2-3 लाइन का हमारा सर्वर है, एंड इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। यहाँ से HTML फाइल कैसे भेजेंगे एक्सप्रेस से? दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू शेयर इट। आपको हर फाइल अलग से नहीं भेजनी है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हमें इंडेक्स भेजनी थी तो हम इंडेक्स को रीड करा रहे थे, अबाउट भेजनी थी तो हम अबाउट पेज को रीड करा रहे थे, स्टाइल जा ही नहीं रहा था, फिर स्टाइल को भी भेजना पड़ता और रीड कराना पड़ता। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए वी ऑलरेडी हैव समथिंग जो कि स्टैटिक फाइल्स में हमें मिलेगा। तो सर्विंग स्टैटिक फाइल्स इन एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस से आप अपने स्टैटिक फाइल्स को कैसे भेज सकते हैं? इज द वे। सो इट सेज दैट कि यूज अ फंक्शन एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और आप रूट फाइल का नाम लिख दो यहाँ पे, बाकी ये हैंडल कर लेगा खुद से, ठीक है। स्टैटिक फाइल्स क्या है सर? HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब कि जो फाइल्स मतलब हम ब्राउज़र को सेंड करेंगे, स्टैटिक फाइल्स मतलब कि
जो ब्राउज़र से सॉरी जो सर्वर पे बिल्ट हो जाएंगी और ब्राउज़र पे सर्व होंगी. सो दोज आर स्टैटिक फाइल्स. ठीक है. ब्राउज़र उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज स्टैटिक फाइल. कहने का मतलब कि आपको जो भी HTML फाइल भेजी जाएगी यू कैन नॉट एडिट इट, तो वो पूरा का पूरा स्टैटिक है. ठीक है. ओके सर. ओके, सो इसीलिए इसका नाम स्टैटिक है. सो इसके लिए विल क्रिएट अ फोल्डर. ठीक है. सो लेट्स ऑर्गेनाइज आवर डायरेक्टरी. सो आई विल से assets. ठीक है. there's an assets and let include 3 files. ओके. कैसे किया सर ये? क्या भाई? अच्छा, मूव. ये हाँ. सो जस्ट फोल्डर फाइल्स. ठीक है. कंट्रोल. ठीक है. एंड जस्ट ड्रैग इन द फोल्डर. इस पर क्लिक करके ड्रैग. ओके. सो दिस इज द एसेट फोल्डर. मैंने एसेट में क्यों रखा है? बिकॉज मैं मुझे अब अलग से सबको नहीं भेजना है. आई कैन से दैट. ठीक है. आई कैन सिंपली से सर्वर डॉट यूज. ठीक है. सर्वर डॉट यूज और इसमें मैं लिख सकता हूँ एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक. और मैं इसको फंक्शन कॉल करूँगा एंड आई विल से सेट्स. यस. ये ठीक है. सो इफ आई से दिस, इसका मतलब कि एसेट्स में जो भी होंगे मुझे अवेलेबल होंगे. तो अबाउट डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अवेलेबल होंगे. लेट्स सी दिस. सो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल. ठीक है. सो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अवेलेबल है और अबाउट डॉट एच टी एम एल, अबाउट डॉट ये भी अवेलेबल है. ठीक है. सो नाउ आई डू नॉट नीड टू रीड फाइल और वो सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. जैसे ही आपने इसको एक्सपोज करा, सो एवरीथिंग इनसाइड द एसेट विल बी अवेलेबल टू. ठीक है. यहाँ से कैसे करेंगे? सो यहाँ से कैसे करेंगे? तो जैसे ही होम पे रिक्वेस्ट आई, मुझे इसको भेजना है इंडेक्स HTML पे, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ. सो आई कैन से दैट वॉट एवर रिक्वेस्ट कम्स ऑन स्लैश होम, यू कैन से रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट. और रीडायरेक्ट करके मैं यहाँ पर URL भेज सकता हूँ. So I can say response dot redirect slash index dot html. Okay. So slash home will redirect to index html. Let's see this. So slash home slash home. Okay. So redirect पे हमें 301 मिलेगा. ठीक है. So something. So okay 302. Guys remember 302 3 redirect वाला but we discussed about the status code. Okay. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. ठीक है. सो हमने एक्सप्रेस की हेल्प से सक्सेसफुली जो है फाइल्स को सेंड किया. एनी डाउट स्टिल हियर गाइस? हाँ सर. हम्म. एक्सप्रेस हमने यूज करने से पहले हम CSS की स्टाइलिंग करने जा रहे थे, बट उसको अलग से स्पेसिफाई करना होता. जैसे हमने .html के 2 फाइल्स को वहाँ पे अलग से मेंशन किया था. हाँ. तो ठीक है. एक्सप्रेस की मदद से आपने बोला कि हम सबको एक ही फोल्डर में डाल के एसेट्स का पाथ देंगे और एसेट्स के अंदर सारे फोल्डर्स रन हो जाएंगे. ठीक है. तो हम हमारे HTML index.html में हमने लिंक टैग नहीं दिए क्या सर उसके? अच्छा दे दिया है. हाँ. अब अभी मैंने कमेंट दिखाइए किया. सर. ठीक है. ट्राई करते हैं इसको. So, सेव करना होगा सर को. हाँ. हाँ हो गया. ठीक है. हाँ सर. अच्छा, ये हुआ कैसे आगे? लाइक मैंने तो रीडायरेक्ट इस पे करा था ना सिर्फ. क्या बोलते हैं लाइक मैंने तो सिर्फ इंडेक्स HTML पे रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट करा था. तो फिर ये CSS कहाँ से आया? तो इसकी रिक्वेस्ट HTML फाइल खुद करता है. ठीक है. ब्राउज़र खुद बोलता है कि भाई ये लिंक है, इस पर रिक्वेस्ट करो. तो मैंने लिखा है स्टाइल CSS. मैंने लोकल होस्ट 8000 नहीं लिखा. जब आप सिर्फ स्लैश लिखते हो तो उसका वो ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेता है कि ये इसको लोकल होस्ट 8000 स्लैश स्टाइल डॉट CSS चाहिए. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें ब्राउज़र खुद हैंडल करता है. अब आपको अलग से यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत
नहीं है। अगर हम सिर्फ रिलेशन वो href में अगर सिर्फ स्टाइल डॉट कैसे लिखते हैं सर तो वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो अगर सिर्फ स्टाइल CSS लिखेंगे वो ट्राई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलेगा, लाइक वो भी चलेगा। तो क्योंकि हमारे HTML फाइल में लिंक हो चुका है CSS फाइल, तो सारा का सारा HTML फाइल आ रहा है इसीलिए ठीक है। सो अभी विद द चेंजेस ऑफ हाँ, तो अच्छा यही होगा कि हम स्लैश लगाएं। क्यों लगाएं वो देखते हैं। जैसे मैंने स्लैश लगाया था ना, स्लैश स्टाइल CSS लिखा था, तो स्टेटस कोड थी 200, ठीक है, वो फाइल सर्व हो रही थी। बट जैसे ही मैंने स्लैश हटा दिया तो स्टेटस कोड 304 हो गई है। तो अब एक्सप्रेस इसको भेज रहा है, ठीक है, HTML इसको डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा है, ये एक्सप्रेस के थ्रू होके आ रहा है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम मतलब कि पूरा लिखें, ठीक है। सो दो तरीके हैं, एक तो फाइल खुद उसको कॉल करेगा तो एक्सप्रेस उसको अलाउ करेगा, अदरवाइज एक्सप्रेस अपने थ्रू डायरेक्ट करे इसको। तो इट वुड बी बेटर कि हम इसको स्लैश वो करके देंगे, ठीक है। बट ठीक है, एवरीथिंग विल वर्क। सो सी, फ्रेमवर्क यूज़ करने के यही फ़ायदा है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी हैंडल्ड, सारी चीज़ें ऑलरेडी हैंडल हैं। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। सो लेट्स ट्राई टू सेंड एनी एरर पेज। कैन नॉट गेट होम, अब सर्वर हैंग नहीं कर रहा है। यू सी, लाइक ये तुरंत बोल रहा है कि इस ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? हाँ सर ठीक है, अब यहीं पे नॉर्मल सर्वर रहता तो फिर वो वेट करते रहता, भाई चल रहा है 5 मिनट तक। ये क्यों चलता है? बिकॉज देर इज़ अ टाइम आउट, ठीक है, टाइम आउट भी जाता है यहाँ से। कीप अलाइव, आप अगर आप देखोगे रिस्पॉन्स हेडर में तो यहाँ पे टाइम आउट लिखा हुआ है। तो ये सारे टाइम आउट्स भी जाते हैं, कहता है कि भाई 5 मिनट तक इंतजार करना है, ठीक है, हैंग करने से पहले, मतलब सॉरी क्रैश करने से पहले। बट एक्सप्रेस कह रहा है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं है, तो यू कैन जस्ट क्लोज द कनेक्शन। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैंडल्ड होती हैं फ्रेमवर्क के केस में। तो ये पॉइंट है। ओके, व्हाट एल्स? ठीक है, हेलो वर्ल्ड में व्हाट डू वी हैव? ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक्सप्रेस जनरेटर वी डू नॉट नीड इट। बेसिक राउटिंग, ठीक है। राउटिंग पढ़ने से पहले लेट्स क्रिएट आवर ओन API, ठीक है। लेट्स क्रिएट आवर रेस्ट API। एक रेस्ट API बनाते हैं, ठीक है। आई विल क्रिएट वन मोर सर्वर। मैं एक सर्वर क्रिएट करता हूँ। ओके, सो जस्ट अ सेकंड गाइस। रेस्ट API, नॉर्मल API और रेस्ट API में क्या डिफरेंस है? सो दिस इज समथिंग काफ़ी कंट्रोवर्शियल है कि रेस्ट API क्यों बोल रहे हैं। API भी तो बोल ही रहा था ना, अभी तक तो काम कर ही रहा था, तो फिर रेस्ट API कहाँ से आया? सो वही देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज रेस्ट API। ओके, फर्स्ट स्टेप इज npm init, ठीक है। अगर आपको ऑप्शंस वगैरह नहीं फिल करने तो आप -y कर सकते हो, ठीक है, आपसे ये कुछ नहीं मांगेगा। बट अगर आप चाहते हो सारे ऑप्शंस फिल करना तो यू कैन से npm init और आप ये सारा फिल करो। सो यू कैन से रेस्ट API, ठीक है, और आप सब पे एंड फाइनली यू कैन से ऑर्डर एंड सो पैकेज जेसन जनरेट हो गई। जेसन लाइक ये इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो वर्जनिंग है, डिस्क्रिप्शन है, मेन थिंग एंड एवरीथिंग इज ऑल ओवर हियर। टू थिंग्स वी ऑलरेडी नीड इज, जो हमें ऑलरेडी चाहिए, तो आई कैन से npm i। सबसे पहले तो एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं और दूसरा नोडमॉन इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। एंड टिल नाउ जब तक इंस्टॉल हो रहा है एक फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। सो इंस्टॉल हो भी गया, सो इंडेक्स यस, ठीक है। लेट्स क्रिएट आई क्या है सर npm i npm install express कॉमन नोट में, मतलब अच्छा स्पेस में आई मतलब इंस्टॉल, और जो जो इंस्टॉल करना है उसको स्पेस दे के लिख देंगे, ठीक है। ओके सर और अपने स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं यहाँ पे? स्टार्ट ठीक है, स्टार्ट नोड npm मॉन। नोड node mon मॉन, ऑल राइट, ठीक है। क्विकली सर्वर बनाते हैं, ठीक है।
Okay, so we'll say const express is equals to require, so require, okay, ये रहा express, then we have const, फिर हमें चाहिए port, फिर थर्ड होगा हमारा const app, okay, we'll make it a call, और फिर फोर्थ होगा, so what is the next one, क्या करना है हमें, get app dot get. ओके, सो हमें ऐप डॉट गेट करना है, देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज लेफ्ट, और क्या करना है हमें, Callback function. ओके, बट अभी भी एक चीज़ बाकी है, Response send करना है. इसको छोड़ के बाकी है, क्या बाकी है, Listen करना है हमारे पोर्ट को. यस, वी नीड टू लिसन टू द कोड, तो बस ये चीज़ तो रिपीटेटिव है, ठीक है, चीज़ें अब रिपीट होंगी गाइस, ठीक है, तो हमें बेसिक चीज़ें देखनी थी वो हमने देख ली ऑलरेडी, अब रिपीटिशन, ठीक है, तो इफ़ यू हैव गॉट द आइडिया टेन नो, अभी तक अगर अगर आपको समझ में आ गया कि हमने कैसे सर्वर बनाया और कैसे फाइल भेजा है, तो ट्रस्ट मी इसके बाद सिर्फ रिपीटिशन है, चीज़ें रिपीट होने वाली हैं बस, बैक टू बैक नए नए पैकेजेस आएंगे और उनको नए नए तरीके से हम लोग ऐड कर रहे होंगे सेम फाइल में, बस यही हमें समझना था कि रिक्वेस्ट आती है और फिर रिस्पॉन्स कैसे भेजना है, बस यही बेसिक चीज़ है, देखते हैं, सो आई विल से console.log और server successfully started में एरर भी मिलता है ना, एरर भी मिलता है, एरर के केस में आप एरर प्रिंट करा दो, तो कहो कि आप इफ़ एरर इज़ देयर, तो फिर आप एरर प्रिंट करा दो console.log करके एरर कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ये है, एंड सो एक ऐसा लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, सो देयर इज आई वांट टू क्रिएट अ लिस्ट, और उस लिस्ट में क्या होगा, सो आई कैन ऐड समथिंग टू इट, आई कैन डिलीट फ्रॉम इट, आई कैन चेंज इट, और आई कैन लाइक ऐड इट, और मतलब ये सारे ऑपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, ऐड डिलीट चेंज, ठीक है, ऐड डिलीट चेंज और अपडेट, मतलब चेंज अपडेट एक ही बात है, ठीक है, लेट्स सी, सो आई विल क्विकली से कोई भी डेटा हो सकता है, तो लेट्स से दैट देयर इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, एंड this is this A34, and let's say that B is ये कुछ भी है यहाँ पर, ठीक है, सो दिस इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और मैं इसी में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, ये सारे ऑपरेशंस में परफॉर्म करना चाहता हूँ, डेटाबेस भी इंप्लीमेंट करेंगे, बट अभी के लिए एक नॉर्मल एरे से काम चलाते हैं, सो डेटाबेस विल बी होल्डिंग डेटा समथिंग लाइक दिस, कोई भी डेटा अगर होल्ड करता है तो डेटा का फॉर्मेट क्या होता है, अगर मैं अब खुद का डेटा स्टोर करता हूँ या फिर पूरे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करता हूँ, तो एट द एंड में क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैं नाम, Object store. ऑब्वियसली मैं कोई ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा हूँ जिसमें नाम होगा, रोल नंबर होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, राइट, Yes sir. ठीक है, एंड विल सी कि हम इमेजेस वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं, तो दैट इज़ वन डिफरेंट पॉइंट, मतलब कि वो हम देखेंगे कि कैसे प्रोफाइल पिक्चर एंड ऑल दोज थिंग्स आर लोडेड और वो कैसे स्टोर होती हैं, दैट इज़ अ सेपरेट पॉइंट, वो भी देखेंगे, ये एक एरे है, इसमें ढेर सारी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, सो दिस इज एन एरे ऑब्जेक्ट, कह रहे कि गेट रिक्वेस्ट में, एंड आई वांट टू से गेट डेटा, ठीक है, सो गेट डेटा इज अ एंड पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट वी से दिस, बोलते हैं हम Route. ओके, इसको बोलते हैं हम एपीआई एंड पॉइंट, राइट, ठीक है, Endpoint. ओके, सो वी कॉल इट Okay एंड sir. पॉइंट, ठीक है, राउट हम देखेंगे, ठीक है, राउट थोड़ा बड़ा ब्रॉड सेंस हो गया, ठीक है, दिस इज द लास्ट थिंग, तो उसको एंड पॉइंट बोलते हैं, तो गेट डेटा एक एंड पॉइंट है, और इस एंड पॉइंट में, एंड पॉइंट मतलब कि जैसे ही इस पर रिक्वेस्ट आएगी, इसका काम है इस पूरे एरे को एज अ रिस्पॉन्स भेजना, ठीक है, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है,
तो गेट रिक्वेस्ट तो नाम से क्लियर होना चाहिए कि कर क्या रहा है। तुम कह रहे गेट, तो गेट भी तो हमें सिर्फ गेट करना है और हमें कुछ नहीं करना। तो आई विल से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस में लिखा हमने 200। हमने एचटीएमएल फाइल, सॉरी हमने एचटीएमएल फाइल पे डायरेक्ट करा था, हम जेसन पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो जेसन में मैं भेजता हूँ डेटा। ठीक है, सो डेटा एंड डेटा के अंदर मैंने भेज दिया array of objects. This is how we send a JSON response. तो फिर यहाँ पे हमें हेडर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने पिछले HTML में हेडर लिखा था, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, हेड मतलब कि हेडर, और 200 रिस्पॉन्स कोड और कॉमा देके कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML। कंटेंट टाइप डिफाइन करना है बिकॉज ब्राउज़र को पता रहे कि ये कौन सी फाइल है। तो उसकी जगह पे हमने जेसन भेजा यहाँ से, एंड वी आर सेंडिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, सो ओके, दिस इज इट। गेट डेटा पे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स सी द रिस्पॉन्स। सो ये रहा गेट डेटा। सो गेट डेटा ये ब्रेक कर गया, क्यों? बिकॉज यू हैवंट स्टार्टेड द, सॉरी आई हैवंट स्टार्टेड द सर्वर। कोई चल ओके, सो वी आर गेटिंग द जेसन डेटा ओवर है। ठीक है, सो जेसन का डेटा हमारे पास मिल गया। ओके, नाउ आई कैन, सो दिस वाज द गेट रिक्वेस्ट। इसी तरीके से हम पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। वी कैन लेट्स से अपडेट रिक्वेस्ट, सो अपडेट द डेटा आल्सो, सो वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो हम ब्राउज़र से बिना फॉर्म के नहीं कर पाएंगे। सो आई हैव समथिंग टू डू दैट। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द टूल जो ये काम करता है? ओके, we'll see that too. So let me change the data at least. ठीक है, डेटा बदल देते हैं। सो इसको 40-45 रख देते हैं, एंड कुछ और कर देते हैं यहाँ पर, लेट्स से 30 और 45 ऐसा कुछ कर देते हैं, या कोई भी डमी वैल्यूज डाल देते हैं। ओके, द पॉइंट इज कि हाउ डू वी सेंड अ पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, सो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने से पहले हम एक पोस्ट हैंडलर बना लेते हैं। सो पोस्ट हैंडलर बनाने के लिए हमें सिर्फ ऐप डॉट पोस्ट लिखना है और हमें कुछ नहीं लिखना। ठीक है, आई विल से दैट स्लैश पोस्ट डेटा। ठीक है, पोस्ट डेटा, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो हम इसको ब्राउज़र से तो नहीं कर पाएंगे। सो रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और हमें नाउ इन ऑर्डर टू रिसीव समथिंग, जब हम रिसीव करेंगे तो यहाँ पे तो सिर्फ यूआरएल मिल रही थी, लेकिन जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट की बात करते हैं ना, तो हमें यूआरएल के साथ भी और चीज़ें मिलती हैं। जब हम पोस्ट बोलते हैं तो हमें और भी डेटा मिलता है। पोस्ट का मतलब ही है कि क्लाइंट डेटा भेजो, और जब क्लाइंट डेटा भेजता है तो फिर हमें उसे री लाइक रीड करना पड़ेगा, या फिर हमें उसे भी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, मतलब जो भी पार्सिंग वगैरह जो भी, तो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। वो कैसे होती हैं? तो रिक्वेस्ट में हमें एक बॉडी प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, हर रिक्वेस्ट में मुझे एक बॉडी प्रॉपर्टी मिलती है, और उस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की हेल्प से मैं इसको देख सकता हूँ कि व्हाट आई एम रिसीविंग। अभी के लिए काम करते हैं, जब तक वी डू नॉट रिसीव इट, सिर्फ यही रिटर्न करते हैं। ठीक है, फिर इसमें एडिट करेंगे। ऑल राइट, सो हाउ शुड आई सेंड अ पोस्ट रिक्वेस्ट, देखते हैं। देर इज़ अ टूल वी कॉल दैट एज पोस्टमैन। ठीक है, सो पोस्टमैन एक टूल है जो हमारी एपीआई टेस्टिंग करेगा, हमारी एपीआई की टेस्टिंग करेंगे इस टूल की हेल्प से। एंड इफ़ यू गाइज हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट, अच्छी बात है, अदरवाइज लेट्स सी पोस्टमैन। पोस्टमैन, so it is saying that over 20 million developers use Postman, get started by signing up, downloading desktop, and बाकी सारी चीज़ें आते हैं। इसका काम ही है एपीआई की टेस्टिंग करना। कैसे करते हैं? सो जस्ट आप इसमें इंस्टॉल कर लो। सो विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए। सो इफ़ यू गाइज आर नॉट ऑन मैक, आई वुड हाईली रिकमेंड कि अभी टाइम आ चुका है कि आप लिनक्स पे स्विच करो। ठीक है,
अगर आप विंडोज़ पे हो तो प्लीज़ लिनक्स पे स्विच कर दो, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। बिकॉज इंडस्ट्रीज़ में जो आप जाते हो तो आइदर दे वर्क ऑन मैक और या फिर वो लिनक्स पे, मोस्टली सारे के सारे लिनक्स पे ही काम करते हैं। जितने भी यूनिक्स मशीन है, मैक भी अंदर से यूनिक्स ही है, ठीक है, और उबंटू तो यूनिक्स ही है, सबके सब। विंडोज़ थोड़ा है, ठीक है, विंडोज़ इज़ गुड, बट ठीक है, और हाईली रिकमेंड, बिकॉज अब कमांड्स यूज़ करने वाले हैं जो कि यूनिक्स के स्पेसिफिक होंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो एंड आप ट्रबल में ना हो। सो प्लीज़ आइदर स्विच टू उबंटू, और अगर मैक है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उबंटू है तो और अच्छी बात है। ऑलराइट, सो डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर, आप इसको एक बार डाउनलोड कर लेना सेशन के बाद, ठीक है। सो कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे इसको, ठीक है, इससे कोई भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है, सारी की सारी रिक्वेस्ट हैं यहाँ पे। तो या ओके, ये रही एंड पॉइंट, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। लोकल होस्ट 8000 पे हिट मार के देखता हूँ क्या आता है आंसर। इट्स सीइंग दैट कैन नॉट गेट और ऐसे ऐसे, मतलब जो भी है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज गेट डेटा वाला कॉल करके देखते हैं, तो गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा इज अ कॉल एंड आई एम गेटिंग द डेटा इन अ जेसन फॉर्मेट, ठीक है। तो जेसन फॉर्मेट में हमें डेटा देते हैं। अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आई विल चूज दिस गेट ऑप्शन, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं मेरे पास, पोस्ट पोस्ट पुट पैच डिलीट कॉपी हेड, एवरीथिंग इज ओवर है। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा। तो पोस्ट रिक्वेस्ट जब हमने भेजा तो फिर आई विल से पोस्ट डेटा, ठीक है, पोस्ट डेटा। अब ये रही बॉडी, ठीक है, ये रही बॉडी। सो पोस्ट डेटा और बॉडी, बॉडी क्या है, ये बॉडी वही है जब आप फॉर्म लिख के भेजते हो। जब फॉर्म में, ओके, सो फॉर्म में दो फील्ड्स होती हैं, कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं गाइस जो सेंड होती हैं? नेम और वैल्यू। यस, देर आर टू फील्ड्स, नेम और वैल्यू। अगर आपको याद हो तो इनपुट में दो फील्ड्स होती हैं, नेम और वैल्यू। सो नेम बन जाती है की, वैल्यू बन जाती है उसकी वैल्यू। सो की और वैल्यू की पेयर से सेंड होती हैं जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो, जब आप फॉर्म को भेजते हो। तो कोई भी फॉर्म अगर आप फिल करते हो, नाम पासवर्ड ईमेल जैसे भेजते हो, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन के ही आता है। कुछ इस तरीके का ही होता है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है, नेम ईमेल पासवर्ड। तो यही चीज़ें आप बैकएंड को भेज रहे हो तो, या फिर किसी भी सर्वर को भेज रहे हो तो कैसे काम करता है। सो अच्छा, ठीक है, मैं इसी बॉडी को भेजता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है xww.form url encoded, इसकी जगह पे मैं इसको रॉ डेटा भेजना चाहता हूँ, ठीक है, वो भी जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। मैं भी भेज सकता हूँ, या फिर ये भी चलेगा, ये भी देखते हैं, ठीक है। तो या तो मैं जेसन डेटा भेजूँ, नहीं तो फिर मैं ये पूरी की पूरी, ये ये फॉर्म यूआरएल इनकोडेड क्या है, तो ये हमारा डेटा भेजने का तरीका है। इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बट अभी के लिए इसको देखते हैं, ठीक है। सो मैंने पोस्ट डेटा पे क्लिक करके एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी है, और ये हमें रिस्पॉन्स में ही मिलने वाला था बिकॉज हमने कोई चेंज नहीं करा था। बट हमें बॉडी में क्या मिला, तो हमें बॉडी में मिला है अनडिफाइंड, ठीक है। थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं इसको, एक बार फिर से बताता हूँ। सो पोस्ट रिक्वेस्ट जब आप भेजते हो तो आप खुद से भी डेटा भेज रहे होते हो, और जब आप मेथड में पोस्ट भेजते हो, ठीक है। ओके, मैं आपको फॉर्म दिखाई देता हूँ एक बार, यूज़ नहीं करेंगे बट दिखा, मतलब दिखा देता हूँ। जब आप एचटीएमएल फॉर्म लिखते हो, सो ये रही फॉर्म। फॉर्म में यूआरएल कैसे आती है, वेयर वी सप्लाई द यूआरएल, एक्शन। ठीक है। तो हम एक्शन में यूआरएल को सप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो ये एक्शन वही होगा जो हमारा एंड पॉइंट होगा, वही हमारा एक्शन होगा, ठीक है। बट अभी के लिए इसको अवॉइड कर रहे हैं। इसके अलावा वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मेथड, ठीक है। तो मेथड में आप पोस्ट भेजते हो। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि हमारे डेटा को इनकोड करती है, उसको बोलते हैं इनक्रिप्शन टाइप। इनक्रिप्शन टाइप आपको सेट करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं सेट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा सेंड होता है, नहीं तो एप्लीकेशन। और हमें क्या रिसीव करना है, हमें अभी के लिए यूज़ करना है, ये कब यूज़ करते हैं वो देखेंगे। अभी हमें ये यूज़ करना है, एक्स फॉर्म यू आर एल इनकोडेड हमें यूज़ करना है, ठीक है। क्यों यूज़ करना है वो भी देखेंगे। तो जो ये इंक्रिप्शन टाइप है ना, वही पोस्टमैन रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे,
अगर आप देखो तो ये XWW फॉर्म यू आर इनकोडेड और ये दोनों एक ही चीज़ है जो पोस्टमैन हमें दे रहा है। तो ये थोड़ा सा डमी टाइप का चीज़ है। ये कह रहा है कि भाई आपको HTML लिखने का मन नहीं है तो आप मत लिखो, ठीक है। आप हार्डकोर बैकएंड डेवलपर हो तो आप पोस्टमैन यूज़ करो, ठीक है। मतलब आपको फ्रंट एंड से मतलब ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। सो सिंस वी आर गोइंग टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर तो ऊपर से नीचे सब देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सेंड द डेटा, बट हिज द पॉइंट, इनकोडिंग हो रही है तो इनकोडिंग आपको सीधे नहीं दिखेगी, इसीलिए अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि हम इनकोड कर, व्हाट डू वी मीन बाय इनकोडिंग, इनकोडिंग का क्या मतलब होता है? कि डेटा को एक रैप कर लेके कोड लैंग्वेज या ऐसे कुछ में कि कोई भी उसको पढ़ नहीं पाए। यस, तो कोई भी उसको पढ़ नहीं पाए, मतलब हम ऐसे करें थोड़ा सिक्योरिटी ला रहे हैं। इतनी भी सिक्योरिटी नहीं है, मतलब वो तो दिख ही जाएगी, अगर डेवलपर होगा तो उसको पता चल जाएगा, बट नॉर्मल आइज से थोड़ी हिडन होगी, ठीक है उसका। सो इन ऑर्डर टू सी दिस, इस डेटा को रीड करने के लिए एक्सप्रेस के पास एक फंक्शन है, इसका नाम है एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड, ठीक है। यू आर एल इनकोडेड, जैसे ही मैं यू आर एल इनकोडेड करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे पोस्ट डेटा, सो मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मिलनी चाहिए, देखते हैं मिल रही है कि नहीं। सो आई सेंड द डेटा, ठीक है, और मैं डेटा सेंड करा एंड नाउ आई सक्सेसफुली गेट द डेटा। यही भेजा था हमने पोस्टमैन से, हाँ सर। ठीक है। अब एक्सप्रेस डॉट यू आर इनकोडेड एक ऐसा फंक्शन है जो उस इनकोडिंग को डिकोड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, किस फॉर्मेट में, किस डेटा टाइप में आती हैं सब, ऑब्जेक्ट में, स्ट्रिंग, जेसन ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में। हाँ सर। स्ट्रिंग में आती है, राइट। सो एवरीथिंग कम्स इन स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट भी स्ट्रिंग में, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई वाला जो मेथड था ना, तो वो सभी को स्ट्रिंग में भेजता है कि भाई तुम स्ट्रिंग में, वो कुछ और भेजेगा ही नहीं। कोई भी कम्युनिकेशन हमेशा स्ट्रिंग में सप्लाई होती है guys। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, और उसी स्ट्रिंग को हम पार्स करते रहते हैं। तो जेसन का तो हमें पता है, HTML का भी हमें पता है, HTML का भी HTML स्ट्रिंग भी होती है, ठीक है, वो देखेंगे कैसे काम करती है। तो एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड इसी इनक्रिप्शन को तोड़ने के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस फंक्शन का काम क्या है, यू आर एल इनकोडेड कहता है कि जो भी बॉडी आर, ओके, जो भी डेटा आ रहा है, बॉडी नहीं, बॉडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट में जो भी डेटा आ रहा है इनकोडेड फॉर्मेट में, मैं उसको डिकोड करूँगा, ठीक है। जो भी इनकोडेड इनकोडेड फॉर्मेट में मैं उसको डिकोड करूँगा और एक बॉडी नाम के ऑब्जेक्ट में उसको ऐड कर दूंगा। डेटा को डिकोड करके बॉडी नाम के ऑब्जेक्ट में उसको अपेंड कर दूंगा और उस बॉडी को रिक्वेस्ट में अपेंड कर दूंगा। डेटा डिकोड करके बॉडी में अपेंड कर दूंगा और उस बॉडी को रिक्वेस्ट में अपेंड कर दूंगा। ये सब इंटरनली होता है सर। यस, ये सब इंटरनली होता है। तो रिक्वेस्ट में बॉडी पहले नहीं थी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है जब तक आप ये यूज़ ना करो, ठीक है। तो ओके सर। जब ये यूज़ करते हो तो एक बॉडी ऑब्जेक्ट बनाता है, उसके अंदर डेटा भर देता है और उस बॉडी को रिक्वेस्ट की प्रॉपर्टी बना देता है, इसीलिए हमें बॉडी मिलने लगती है, और अभी तक नहीं मिल रही थी बिकॉज हमने ये यूज़ नहीं किया था। नहीं किया था। तो कुछ ये सीन है। एक चीज़ और है इसमें, सो ये रहा हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। कल इसको देखते हैं, मतलब सॉरी इन द नेक्स्ट सेशन इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, हाउ कैन आई अपेंड इट। बट आई जस्ट गिव यू अ हिंट गाइस, क्योंकि हमें डेटा मिल रहा है तो अब हमारे पास पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि इस एरे में मैं इस डेटा को इंसर्ट कर दूं। एरे है सर, वो तो एरे में पुश कर सकता है कुछ। सही बात है, सिंपल ही है, मतलब कितना क्या सोचना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर दो, हो गया आपका खेल खत्म, बस यही करना था। तो अपेंड में हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डाल दिया। अब देखते हैं हमें वैल्यू क्या मिल रही है। तो अभी तक ये थी, 3 ऑब्जेक्ट्स थी, अब हो गया। हाँ सर। यही करना था ना, मतलब हो तो गया, मतलब क्या ही है। सो अभी के लिए क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल एरे पे काम कर रहे हैं, यही काम हम डेटाबेस में करते हैं। आप एरे में डेटा डालो चाहे डेटाबेस में डेटा डालो, हाउ डज इट मैटर। अच्छी बात, हाँ मतलब सर। कि डिफरेंस यही है कि डेटाबेस परमानेंट है और एरे टेम्पररी है। परमानेंट नहीं है। हाँ सर। जैसे ही मैं सर्वर स्टार्ट करूंगा पूरा एरे रीसेट हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट?
यस सर। तो ये था पोस्ट डेटा। तो गेट डेटा पे जाते हैं। गेट डेटा क्या मुझे पूरा एरे दे रहा है? लेट्स सी दैट। कैन नॉट पोस्ट, क्या है दिक्कत है यहाँ पे, कौन बताएगा? कैन नॉट पोस्ट स्लैश गेट डेटा, क्या प्रॉब्लम है? अरे ये गेट रिक्वेस्ट है ना। हाँ सर, गेट रिक्वेस्ट है। शिट। ठीक है, सो इट इज़ अ गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, सो यही था गैस। एंड आई बिलीव कि आप लोग डिलीट भी कर सकते हो इसको, इसको पैच भी कर सकते हो, इसको पुट भी कर सकते हो। अभी मत पूछना कैसे करना है। डिलीट कैसे करेंगे? तो आपको सिर्फ एक आइडेंटिफायर चाहिए। आप डिलीट में एक इंडेक्स लगा के भेज दो कि भाई इस इंडेक्स वाले एरे, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है इंडेक्स वन पे, इसको डिलीट कर दो। यही तो करना है, हो जाएगा। हाँ सर। भाई एरे वन डॉट पॉप रिमूव जो भी है देख लेना फिर, और क्या करना है इसको, और क्या बताऊँ। ठीक है, देखेंगे। सो दिस इज़ हाउ रेस्ट एपीआई वर्क्स। सो गाइज, नेक्स्ट टास्क आपका यही है कि आप सारे वेज को देखो। ठीक है, सो हाउ दीज थिंग्स वर्क। ठीक है, कि डिलीट रिक्वेस्ट कैसे होगी, एंड मतलब कि लिखना ही है बस। और डिलीट पोस्टमैन में है भी डिलीट रिक्वेस्ट, तो आपके पास पोस्टमैन में डिलीट का भी ऑप्शन है। आप इसी में एक नया ब्लॉक और जोड़ दो, डिलीट नाम का एक बना दो, और उसमें एरे पे फिल्टर लगा दो कि जिस ए की वैल्यू 45 हो, 45 हो, वो डिलीट हो जाए। पॉप कर दो वहीं से फिल्टर फंक्शन से, जेसन जेसन रिटर्न करा दो। अपडेट कैसे करेंगे? तो अपडेट के लिए आप एक कुछ पोस्ट में भेज दो। पोस्ट मतलब कि सॉरी, बॉडी में भेज दो। और बॉडी में आप कहोगे जैसे ही ए की वैल्यू 30 मिले उसको 300 कर दो, एरे रिटर्न करा दो, तो हो गया आपका पुट रिक्वेस्ट, पैच भी हो जाएगा। कॉपी करना है अब तो, बस कॉपी पेस्ट है। उठा के इसको पोस्ट के जगह पे कुछ और लिख दिया, पैच लिख दिया, ये चेंज कर दिया। ये नहीं भी चेंज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चेंज हो चाहे ये चेंज हो, दोनों ही चलेंगे। ठीक है, अगर आपके सेम एंड पॉइंट्स हैं बट आपका मेथड टाइप अलग है, तो भी एक्सप्रेस उसको खुद हैंडल कर लेता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिर्फ एक तरीका है डेटा भेजने का। हमने दो तरीके देखे हैं। एक तो हमने देखा रिस्पॉन्स में पूरा एचटीएमएल भेज रहे हैं, और दूसरा हमने देखा कि हम रिस्पॉन्स में जेसन भेज रहे हैं, राइट? यस सर। ठीक है गाइस, तो यही था। लाइक कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन में। सर कुछ छोटे से डाउट्स थे। हम्म, बताओ। एक रहा सर, ये जब हम ये ऐप डॉट गेट या पोस्ट या सर्वर डॉट गेट या पोस्ट जो एक्सप्रेस के सर्वर पे जब यूज करते हैं, हम्म, तो हम पहले वो एंड, क्या था सर वो, एंड पॉइंट। एंड एंड एक एंड पॉइंट देते हैं और एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं। ठीक है। तो उस कॉल बैक फंक्शन में अगर हम एक रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स भेज रहे हैं गेट हम्म, गेट मेथड के लिए, हम्म, तो ये जो रिक्वेस्ट है और ये एंड पॉइंट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? हम्म। भाई मतलब समझा नहीं, लाइक कि जैसे। मतलब हाँ हाँ। मेरी एक फाइल है हम्म, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। या फिर मान लीजिए होम डॉट एच टी एम एल। ठीक है। इस पे मेरा मेन मतलब होम वाला कुछ कंटेंट है, हम्म, और जो मैं एंड पॉइंट देता हूँ उसमें मैं लिखता हूँ स्लैश होम। ठीक है। या ओके। फिर अब तो नाम सेम है, तो समझ में आता है कि अगर मैं ये वाला एंड पॉइंट दूं हम्म, और वहां पे मेरी ये कॉल बैक फंक्शन में मेरी ये वाली रिक्वेस्ट चले जो होम डॉट एच टी एम एल में हम्म, भेजूंगा हम्म, रिस्पॉन्स डॉट सेंड से। ठीक है। लेकिन अगर कुछ और नाम दे दूं मैं, मेरी दोनों में से किसी का हम्म, भी, या तो एंड पॉइंट का या तो रिक्वेस्ट का नाम मैच नहीं होता, अलग अलग नाम अगर हो, हम्म, तो ये जो एंड पॉइंट है ये हम यूआरएल में स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मुझे ये लाके दो, गेट मी दिस। हम्म। और हम जो फंक्शन में पास कर रहे हैं वहां पे हम किसको बोल रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट चला के दो? ओके, ठीक है। ओके, एक बार मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। इसी चीज का एक और मेरा एडेड डाउट ये है सर कि हम जब फिर एक फंक्शन में कॉल बैक फंक्शन में एरर पास करते हैं कि अगर एरर हो तो मेरा कोड नहीं चलेगा, और अगर चल रहा हो तो ये रिक्वेस्ट फेच करके दो, ये रिक्वेस्ट गेट करो। हम्म, तो फिर एरर के साथ साथ हम एक और भी
वो देते हैं, हम क्या बोलते हैं, कुछ और भी अगर पास कर रहे होंगे, जिसको आपने थोड़ी देर पहले कुछ बफर करके बोला था, वो समझ नहीं आया, एक बार वो भी अगर एक्सप्लेन करोगे। सो ठीक है, ऐसा समझेंगे कि ये जो हैंडलर है ना और ये जो एंड पॉइंट है जो यूआरएल है, ये दोनों मतलब कि ये दोनों मैंने लिंक करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हैंडलर कैसे चीज़ों को हैंडल करता है उससे, लाइक जब जब मेरी ये इसका काम, इस एंड पॉइंट का काम सिर्फ इतना ही है कि रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुँचा दो। अब ये इसको कैसे भी हैंडल कर सकता है, जो ये वाली कॉल बैक है ये इसके साथ कुछ भी कर सकती है, ठीक है। इसका काम इतना ही है कि बस ये मैच होना चाहिए, ये फंक्शनैलिटी पूरी अलग है। अब इसके अंदर मैं कहीं और रीडायरेक्ट कराऊँ, किसी और फाइल पर रीडायरेक्ट कराऊँ, इंडेक्स सर्व करूँ, इससे इसको लाइक वो सेपरेटेड है, बस इसका काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है इस वाले पार्ट का। अभी अपना खुद आगे बढ़ेगा। ये हो सकता है कि इसको रीडायरेक्ट भी कर दे तो ये पोस्ट डेटा से गेट डेटा पे चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो एंड पॉइंट का काम सिर्फ इतना ही होता है कि सिर्फ ये मैच कर जाए, इसके अंदर कहाँ किस यूआरएल पे जा रहा है, कौन सी फाइल होस्ट हो रही है, उससे इसको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट तो ये है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई फाइल सर्विंग हो सकती है। अच्छा, बफर का मतलब, अच्छा बफर मतलब ये होता है कि जब कोई बड़ी फाइल होती है ना तो वो पार्ट बाय पार्ट लोड होती है, मतलब कि 3 MB 4 MB की फाइल है तो वो 1 सेकंड में 3 सेकंड में ऐसे लोड होती है और आपको दिखती भी है, मतलब परसेंटेज लोड हो रही है, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग है तो पूरा का पूरा डेटा एक साथ जाता है बिना ब्रेक हुए, ठीक है। बट कोई फाइल जाती है तो एज अ बफर जाती है, बफर मतलब कि उसको बाइनरीज में तोड़ देता है वो, ठीक है। बट ऐसे ब्रेक करता है ताकि वो बाद में उसको जोड़ पाए, तो उसको हम बफर बोलते हैं। तो सिर्फ फाइल सिस्टम मॉड्यूल में ही काम रहता है उसका। और हमें मतलब कि हमें यूज़ करना, ठीक है। अ, अगर बट अगर आप बफर डेटा टाइप के बारे में और पढ़ना चाहते हो तो आई कैन प्रोवाइड सम रिसोर्स। एक्चुअली कोर्स में एक डाउट था सर मेरे को, मैं शायद हम और नेक्स्ट लेक्चर में शायद उस वहां तक पहुंच जाएंगे जो आप बोल रहे थे कि एक हम क्या था ये, हमारी एरे ऑब्जेक्ट में आप कुछ और ऑब्जेक्ट ऐड और डिलीट करके बताओगे, तो हम जब वो करेंगे मैं तब शायद बेटर आपको पूछ पाऊंगा। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। सो आशीष इज राइट, आशीष? Yes, sir. Dilip Yes, is sir. Dilip is here. Himanshu was here. Himanshu just left. Nabil is here. Nikhil is here. Nikhil is Shivam is here, right? Vikas is here. Okay, sorry. So Shivam is here. Hello, sir. Yeah, Shivraj is here. Shivraj Babu Rao. Yeah, Shivraj. Yes. Yeah. All right. Shivam is here. No, Shivam is not here, right? Okay, not sure. But anyways, so Vikas. एक्सप्रेस यूज करके सर हम्म, राइट हेड यूज करने की जरूरत नहीं होती ना, ये राइट हेड और कंटेंट टाइप मेंशन करने हाँ, की जरूरत नहीं होती। यस। सो राइट हेड लिख रहे हैं हेडर के लिए, मतलब कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे होते हैं कि भाई ये मतलब कंटेंट टाइप क्या है और ये किस टाइप का डेटा है, तो ये सारी चीज़ें भेज रहे होते तो नॉर्मल सर्वर हम जब बनाते हैं तभी देना होता है ये। हैं। हाँ, मतलब कि सीधा मॉड्यूल ही यूज़ कर रहे हैं HTTP वाला, तब वो सब करना है। देखेंगे हेडर के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। तो कैसे काम होता है, ओके सर। ठीक है, देखेंगे उसको। और हेलो सर। या सूरज, सर थोड़ा मेरा ये प्रॉब्लम था कि इस लेक्चर के बाद मेरे को 5 मिनट टाइम मिल सकता है, आपसे थोड़ा सा बोलना है मेरे को। ओके ठीक है गाइस, कंटिन्यू करो आप लोग, ठीक है। सूरज के साथ मैं बात कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय गाइस। या हेलो बोलो। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा ये प्रॉब्लम है, आप जो आई मीन जो टीचिंग करते हैं वो आप लैपी जो यूज करते हैं वो एप्पल का रहता है, राइट? मेरा भी विंडोज है, इसमें मेरा ये प्रॉब्लम आता है कि जो मैं फाइल वगैरह सेव करता हूँ, जो पाथ रहता है ना, वो थोड़ा सा अलग रहता है आपका और मेरा, राइट? यस। सो आप जो टीचिंग करते हैं वो उस टाइप का जो सेव करने का मेरे को बहुत एरर आते हैं। जो नोड.जेएस में मैं पहली स्टार्टिंग को क्वांट का जो सर ले रहा था, जो उसमें मेरे को एरर आया, उसके बाद मेरे को वो कैसा एरर वगैरह कैसा आई मीन डिबगिंग कैसा करना थोड़ा सा नॉलेज नहीं आ रही उसमें।
तो इसलिए बेटर अप्रोच के लिए मैं कौन सा ऐप यूज करूँ, लिनक्स यूज करूँ या विंडोज यूज करूँ? ठीक है, आप आपके मशीन का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, रैम कितना है उसमें? अभी मैं न्यू है 8 GB का है, HP। ओके, काफ़ी सही है। तब तो आप उबंटू यूज़ करो, एकदम बढ़िया से चलेगा। कौन कौन सर आप उबंटू यूज़ करो, मैं आपको ठीक है, मैं आपको यूबंटू? आप दोनों भी रख सकते हो आप या थोड़ा फिर सा मेरे को चलेगा, मेरे को थोड़ा व्हाट्सएप पे तो उसका लिंक वगैरह भेज सकते हो आप? ठीक है, ठीक है, मैं मैं आप आपको मैसेज करूँगा। ओके, मैं आपको लिंक और उसको कैसे इंस्टॉल करना है दोनों भेज देता हूँ। और सर मेरे की प्रॉब्लम ये था कि एक अगर अपन प्रोजेक्ट लेने के लिए वो सभी इंस्टॉल करना पड़ता है ना, जो लाइक जेसन फोल्डर वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है जो VS Code में, राइट? यस। सो जो न्यू 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 प्रोजेक्ट के लिए वो फिर इंस्टॉल करना पड़ता है क्या? हाँ, तो आपको npm इनिशियलाइज करना पड़ेगा जब भी आप नया नोड प्रोजेक्ट बनाते हो तो। और ऐसा भी हो गया, मेरा एक प्रोजेक्ट था लेकिन मैंने इंस्टॉल किया, वो सेकंड का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया, लेकिन मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट ये एग्जीक्यूट हो रहे, सेकंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता ही नहीं। ठीक है, एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वो भी देख लेंगे, आप ये उबंटू वाला कर लो। ठीक है, और अगर हाँ ऐसा हो ठीक तो है, ठीक। आप जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे थे, जिस फोल्डर में, उस फोल्डर से हाँ हट के एक नया फोल्डर बना के वहाँ ट्राई करो। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। ओके भाई, चलो बाय। ठीक है सर। यस बाय।